یقیناً ہر روز جب ہم خدا کے حضور چھپتے ہیں تو خدا کی رحمت کا ہم تجربہ کرتے ہیں، اس کے فضل کا تجربہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کس قدر سربلند ہے اور خدا کس قدر عظیم ہے اور اس کی شفقت کس طرح بنی نوع انسان پر برستی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، انسان جو بدکاری میں پیدا ہوا اور بدی انسان کا شوق بن چکا ہے، ہمیشہ انسان کی بدی جو ہے وہ خدا سے دور اس کو کر دیتے ہیں، ہمیشہ انسان کی بدکاریاں اس کو خدا سے دور کر دیتی ہیں، اور جب خدا سے دور کر دیتی ہیں، خدا سے دوری سے مراد ہے کہ اپنی برکت سے دوری کر لیں۔ خدا سے دوری سے مراد ہے کہ جو رحم ہے اس کا، اس رحم سے دوری کر لینا، اور خدا سے دوری سے مراد ہے کہ ابلیس کے ساتھ سنگت کر لیتے، ابلیس کے قریب آ جانا، ابلیس کے کاموں میں ملوث ہو جانا۔ ظاہری سی بات ہے، جس کی زندگی میں خدا نہیں اس کی زندگی میں کون ہوگا؟ اس کی زندگی میں یا تو انسان ہوگا یا تو شیطان ہوگا، اور جس کی زندگی میں انسان ہے وہ بھی شیطان ہی کو رکھتا ہے، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسان کو جو دل بخشا ہے وہ اس لیے بخشا ہے کہ اس دل کے اندر خدا انسان کو بسایا۔ خدا نے انسان کو جو دل بخشا ہے وہ اس لیے بخشا ہے کہ انسان اس دل میں خدا کو بسائے اور اس کے لیے دروازہ کھولے۔ یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں کہا ہے کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، اور جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے میں اس کے پاس اندر آتا ہوں۔ اور یسوع مسیح جب آپ کے دلوں کے اندر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، وہ دل کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور جس کے دل میں خداوند اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، کیا اس کو ہارٹ اٹیک کبھی آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ کیا اس کی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ کبھی کسی پریشانی میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا، جس کے دل کے اندر خدا بستا ہے۔ پر ہم دل میں کس کو رکھتے ہیں؟ یا شیطان کو یا کسی انسان کو۔ کل جو دن گزرا ہے بڑوں نے اپنے دل نکال کے کسی نہ کسی کو دیے، ایسا ہی بتھیرے لوگوں نے دیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ راہل نے دیا، لیکن بتھیروں نے دیا۔ بے شمار لوگوں نے اس عمل کو کیا ہوگا، کسی کے ساتھ محبت کا اقرار کیا، یہ ہے وہ ہے جی، لیکن خدا نے انسان کو دل کس لیے بخشا ہے؟ کہ میں اس میں آ کے سکونت کروں، خدا اس میں سکونت کرے۔ اور وہ کہتا دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکتا ہوں، پر خدا کہتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے خدا کو کہ نہیں میں تے اندر کسی اور نوں پانا۔ وہ بڑے عجیب عجیب گانے میں دل والی سیج اتنے بن کے پرانا تو سو جاوے سجنا، تے اے گل جی یسوع نوں آکھو، جس دل دی سیج یسوع لئی سجا لی جائے تے یسوع نوں آکھے تو بن کے پرانا آ جا ساڈے دل چ۔ تے جے کوئی عام بندہ وڑ گیا تو انہیں تے کچھ نہیں کرنا، یسوع دے آ گیا تو انہیں تے بڑا کچھ کر چھڑنا۔ اس سے تو وہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر آپ کو بیمار کرتی ہیں وہ نکال ڈالے گا، کیونکہ بندہ اندر تہاڈے دل چ وس جائے گا تو وہ تہاڈے دلوں بیماری کر دے گا اندروں، کدی نہیں کر سکتا۔ یا کوئی عورت کر سکتی، وہ اور بیمار کرے گی۔ انکل نے کیا خوبصورت بات کی، بلکہ وہ اور بیمار کرتے ہیں۔ لیکن اگر دل کا پرونا یسوع کو بنا کے اندر بٹھا لیا جائے تو کیا ہی بات، اندر سے ساری بیماری نکل جائے گی، ساری کمزوریاں وہ نکال ڈالے گا، سارے بلڈ پریشر کے ایشو وہ نکال دے گا، ہارٹ اٹیک کا ایشو نکال دے گا، ذہنی توازن کو ٹھیک کر دیتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس قدر میرا خدا عظیم ہے، وہ جب کسی کے دل میں آتا ہے تو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ نہ صرف زندگی بدلتا ہے، داؤد آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، جس کے دل میں خدا بس جاتا ہے اسے وہ غریب چرواہے سے اٹھا کر تخت پر بٹھا کے بادشاہ بھی بنا دیتا ہے۔ داؤد کون تھا؟ ایک غریب چرواہا، اور داؤد ایسی شخصیت ہے جس کی بابت خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق ہے۔
क्योंकि उसने अपने दिल में खुदा को बसाया। उसने अपने दिल में खुदा को बसाया तो खुदा ने अपने दिल में उसे बसा लिया। खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिक कौन है? दाऊद। मतलब खुदा के दिल में कौन है? दाऊद। क्योंकि दाऊद के दिल में खुदा है। जाते जुलूस चला के कह रहा था इसराइली आओ मुझसे मुकाबला करो। सारे डर के भाग रहे। वो कहता है ये कौन होता है जिंदा खुदा की फौजों को ललकारने वाला? इसको पता नहीं कि कौन से खुदा को ये ललकारता है। कोई नहीं लड़ता। खैर मैं लड़ूंगा उससे। क्यों? उसके दिल में कौन है? उसके दिल में खुदा है। उसको पता है कि जिस खुदा को मैंने दिल में बसा लिया है, जो मेरे अंदर बसता है, वो कितना अजीम है। ये जाती जुलूस भली 6 फुट का है या 8 फुट का या 10 फुट का है, ये उस खुदा की हाइट के आगे कुछ भी नहीं। जाती जुलूस की हाइट कितनी होगी? तकरीबन 10 फुट 12 फुट होगी। खुदा की हाइट कितनी? कलाम कहता है कि आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की क्या है। तो कितना ऊंचा खुदा, कितनी हाइट उसकी। जिसके दिल में इतनी ऊंचाई वाला खुदा बसता हो, क्या वो 12 फीट वाले जाती जुलूस से डरेगा? कभी नहीं डरेगा। और जब उसके अंदर खुदा है तो उसके अंदर से वो खौफ गया मैनू मार देगा। जबकि दाऊद के बड़े भाई खुद उस फौज का हिस्सा था, उनके अंदर जरूरत नहीं थी। उसके सेम खून है ना, सेम ब्लड है। कह सकते हैं भाई तेरा खून क्यों जोश मारता है? तो भी तो साढ़े भरा है। दाऊद एक छोटा बच्चा होकर इतनी दिलेरी कर रहा है, 12 साल का बच्चा है। वो जाती जुलूस को ललकारता है कि मैं इससे लड़ूंगा। जबकि उसके बड़े भाई जो सूर में है, जो फौज के सिपाही हैं, और फौज में ऐवी मारा जा बंदा लेते हैं। फौज में कैसे लोगों को लेते हैं? पूरा मेडिकल होता है उसका चेकअप होता है, हाइट चेक की जाती है, उसकी चेस्ट चेक की जाती है, उसकी कंधे चेक करते कितना चौड़ा है कितना लंबा है। फौज में ऐसे बंदे लेते हैं। तो अगर दाऊद के भाई फौज में थे तो मतलब वो लंबे थोड़े शरीर जवान होंगे। और जब जवान थे उनमें और दाऊद में सेम ब्लड है। खून तो सेम था दोनों भाइयों में। उसके भाई 2 बड़े थे, फौज में थे। फौज जरूरत नहीं कर रहे कि जाके जाती जुलूस लड़े, और छोटा सा बच्चा दाऊद जरूरत कर रहा है। क्या उसका खून चेंज है? खून सेम है लेकिन दिल चेंज है। उनके दिल में खुदा नहीं है, इसके दिल में खुदा है, जिसकी वजह से उसके अंदर से वो सारा डर कि जाती जुलूस मुझे मार देगा वो निकल गया। ये तो जाती जुलूस तो उसने शेर को मार के अपनी भेड़ को बचाया है। ये भी वाकया खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी भेड़ को शेर उठा के ले गया तो वो उसके पीछे गया और उसको बचा लिया, शेर को मार दिया। और जब वो बताता है किसी को तो लोग कई बार यकीन भी नहीं करते थे। छड़ दे भाई, तू छड़ता है, तू छड़ता नहीं, बाकी तो जाके जंगल में शेर मरा पे। कहने का मतलब ये है कि खुदा जिसके दिल में बसता है उसके लिए हर एक काम मुमकिन हो जाता है और उस पर खुदा रहम करता है। और जिसके दिल में खुदा है उससे बदी सरजद होती ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग जो खुदा के लोग हैं, हमें ये मौका खुदा ने बख्शा है कि लैंड सीजन के रोजों के आयाम में हम खुदा के करीब आए, हम रोजा रखें, दुआ करें, तो ये वक्त है कि हम खुदा की कुर्बत को हासिल करें और खुदा को अपने दिल में दावत दें। पूरे महीना ये 40 दिन जो हमें मौका मिलता है कि हम खुदा के जो रोजे रखें। कई लोग पूरे रोजे रखते हैं, कई नहीं रख पाते, और जरूरी नहीं कि हम सारे रखते हैं, हमें वो उस तरीके से फर्ज नहीं जिस तरह गैर कौमों में होता है। लेकिन अगर हम ये करते भी हैं तो इसका हमें फायदा ही होता है, हम खुदा के करीब हो जाते हैं। जितने ज्यादा हम खुदा के करीब होते हैं, खुदा धीरे धीरे हमारे दिल में बसेरा करता है। जब दिल में बसेरा कर लेता है तो दाऊद की तरह हमारे अंदर जुर्रत आ जाती है, हमारे अंदर से बीमारियां निकल जाती है, हमारे अंदर से परेशानियां निकल जाती हैं। हम खुदा के इस कदर करीब हो जाते हैं कि हम जो खुदा से मांगते हैं वो हमारे लिए करने के लिए कादिर हो जाते हैं। हम फिर परेशानियों का शिकार नहीं होते, हम मुश्किलों का शिकार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने खुदा के साथ जब वक्त गुजारा है, हमने खुदा के लिए अपने दिल को खोला है, वो अंदर आ गया है, तो फिर अंदर से परेशानियां तो निकाल ही देंगे। एक खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब में से ज़बूर 78 78 ज़बूर 78 उसकी 38 आयत लिखा है कि लेकिन वो रहम कर कर बदकारी माफ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता, और उसे याद रहता है कि ये महज बशर हैं।
यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की और सहरा में उसे अजरदा किया। खुदा के कलाम लिखा है कि खुदा हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और गजब करने पे अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बशर है, ये इंसान है। जिस तरह हवा एक बार चली जाती है तो वापस जाती है, ये भी अगर मर गया तो ये जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए वो हमेशा अपने लोगों को मौका देता है, अपने लोगों को चांस देता है। और ये भी हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम खुदा को अपने दिल में बसा लें, अपने साथ उसको ले लें। जब रोजों के अयाम चल रहे हैं, हम हर रोज खुदा की हुजूर इबादत करने के लिए जब इकट्ठा हो, हम हर रोज जब रोजे में ठहरे, तो ये वो वक्त होता है जब हम खुदा के करीब जाते हैं और खुदा को अपने घर में, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। और जब खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है, उतर आता है, दिल में बस जाता है, तो याद रखें जहां खुदा है वहां इब्लीस काम नहीं कर सकता। जहां खुदा है वहां कोई परेशानी काम नहीं कर सकती, वहां कोई रुकावट नहीं। जहां खुदा मौजूद है वहां कोई नेगेटिव बात नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए अपने आसमान को खोल देता है, अपने लोगों पर वो रहम करता है और गजब नहीं करता, और उन पर वो हमेशा शब्द भला हाथ बढ़ाता है। जो लोग खुदा के लिए अपने आप को पेश करते हैं, जो खुदा के लिए अपने दिल को खोलते हैं। जब कलाम में इसमें कहा कि जब कोई दरवाजे में खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलता है मैं अंदर आता हूं। और जब आप खुदा के लिए दरवाजा खोलते हैं, खुदा को अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हैं, खुदा को अपने दिल में आने का मौका देते हैं, वो आपके साथ अंदर आता है, वो आपके दिल में आता है। और ना सिर्फ आता है बल्कि वो आपकी जिंदगी को, आपके दिल को, आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को, आपके रवैये को, आपकी सेहत को कंप्लीटली तौर पर बदल देता है। आमीन। तो आज की इबादत भी हमारे लिए इसी मकसद के लिए थी कि हम हर रोज खुदा के झुके, इबादत करें, दुआ करें कि खुदा हमेशा हमें अपने साथ साथ लिए चले, हम खुदा को साथ साथ चलने वाले हो और कभी हम खुदा से दूरी लेने वाले हो। और ये सिलसिला हम इसी तरह पूरे 40 दिन तक रखेंगे और उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि इबादत सिलसिला चलता रहे, ताकि खुदा के साथ हमारी कुर्बत जो है वो बढ़ती जाए। आमीन। आइए अपने आंखें बंद करें, दुआ करें।